afternoon, dear students. In the last lecture, we have learned about the Krebs cycle, the third step of aerobic respiration, and today we are going to discuss a fourth step, that is electron transport chain. So let's start. This is the introduction. So ETC stands for electron transport chain, which is the fourth stage, and it is a final stage of aerobic respiration. Through ETC, that is electron transport chain, the E, that is electron needed for the cellular activities, is released into the form of ATP. So इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो फोर्थ स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन की, इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं NADH2 NADH एंड FADH2 जो क्रेब्स साइकिल में बन रहे थे, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ होंगे. अभी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने के बाद क्या होगा, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ ATP. सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप in which ATP generation formation takes place. Then ETC is an O2 dependent process which occurs in the inner mitochondrial membrane. You know the structure of mitochondria, in which there are two layers, that is outer membrane and an inner membrane. So the electron transport chain, which is O2 dependent, it occurs in the inner mitochondrial membrane. So हमारा पर्पस क्या है ETC का, ATP जनरेशन करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज मीन्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करना. सी द डेफिनेशन. दिस इज द फाइनल कॉमन पाथवे इन एरोबिक सेल्स बाय विच इलेक्ट्रॉन्स डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सबस्ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजन. देन द ETC इज सीरीज ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कैसे होंगे, बहुत सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये हम देखते हैं. सो इट इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन enzyme. Then ETC is localized in mitochondria, where in the inner mitochondrial membrane, and mitochondria are the centers for metabolic oxidative reactions to generate reduced coenzymes, that is NADH and FADH2. क्रेब्स साइकिल में हमने देखा था कि NADH and FADH2 फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि थर्ड स्टेज है क्रेब्स साइकिल की, एरोबिक रेस्पिरेशन की. सो NADH and FADH2 produced in the Krebs cycle, but they are utilized in ETC, that is electron transport chain में इसका utilization होगा to liberate E in the form of ATP. Hence mitochondria is regarded as powerhouse of the cell. So mitochondria की inner membrane में ये जो process है ETC cycle है वो चलती है, जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ATP. नाउ लेट्स सी द माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनाइजेशन. अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, यू नो अबाउट इट. सो 5 डिस्टिंक्ट पार्ट्स आर देयर. द वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, इनर membrane space, intermembrane space, which is in between outer membrane and inner membrane. Then there are the cristae. Inner membrane, invagination of inner membrane takes place, and then there will be a formation of the cristae-like structure and the matrix, which is present in the inner mitochondrial space. So this is the mitochondrial organization, and these are the 5 distinct parts of the mitochondria. So structure आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा है. Now let's see the inner mitochondrial membrane function. So electron transport chain and ATP synthesizing system are located on inner mitochondrial membrane, which is rich in proteins. It is impermeable to ions, means उस जब तक inner जो membrane है, internal membrane माइटोकॉन्ड्रिया की, वो जब तक परमिशन नहीं देंगी तब तक ये जो कुछ आयन्स है, जैसे कि H ions, potassium and sodium ions and small molecules like ADP and ATP, ये वहाँ से
अंदर की तरफ मैट्रिक्स में नहीं आएंगे जब तक कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसे परमिट नहीं करती. दैट्स वाई इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल. देन IMM, inner mitochondrial membrane, is highly folded to form crystal-like structure. The surface area of the IMM is greatly increased due to cristae. माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? वो ATP जनरेट करता है. सो उसे एनर्जी बनाने के लिए सरफेस एरिया भी ज़्यादा है. किसकी वजह से? क्रिस्टी. जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है इनर मेम्ब्रेन का, उसे क्रिस्टी कहते हैं. जहाँ जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा और जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे. देन लास्ट वन इज द IMM possesses specialized particles that look like lollipops, the phosphorylating subunits, which are the centers for ATP प्रोडक्शन. तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन वहाँ से होगा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से. सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. द इंटीरियर ग्राउंड substance means a gel-like structure present in the inner membranous space, inner mitochondrial membrane. सो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. लेकिन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड है, जिसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, विच इज़ रिच इन एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर TCA साइकिल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड. सो ये सारी चीज़ें कहाँ पे चलेंगी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी प्रेजेंट होता है. सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज रिच इन एंजाइम्स. देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ATC. अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. The inner mitochondrial membrane can be disrupted into 5 distinct enzyme complexes denoted as complex 1, 2, 3, 4 and 5. The complex 1 to 4 are carriers of electrons while 5th is responsible for ATP synthesis. See 5 complexes है जो यहाँ पे काम करेंगे, जिसमें से 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ कैरी करने का काम करेंगे, लेकिन जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे होगी? इन अ 5th कॉम्प्लेक्स. बिसाइड्स दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस देयर आर सर्टेन मोबाइल कैरियर्स इन ETC. अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के लिए H आयन का अंदर आना ज़रूरी है. जैसे कि हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ इम्परमिएबल. सो वो हाइड्रोजन आयंस होते हैं या फिर अलग अलग तरीके के आयंस जो है, मैग्नीशियम आयन है, उन्हें अगर अंदर आना है या फिर किसी आयंस को बाहर की तरफ जाना है तो कोई और प्रोटीन्स भी लगेंगे कि जो उसे कैरी कर सके. तो अलग अलग तरीके के एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. दिस इंक्लूड NADH, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C and oxygen. Then the complexes 1 to 4 and the mobile carriers are collectively involved in the transport of electron, which ultimately combine with O2 to produce H2O. Most of the O2 supplied to the body is utilized by mitochondria for electron transport chain. So this is the diagram of mitochondria, in which here is the intermembranous space, this is the outer membrane, this is the inner membrane, and this is the matrix where all the reactions takes place. So here you can see the complex 1, 2, 3 and 4, and then there is a 5th one which is also known as the ATP synthase. So यहाँ पे क्या हो रहा है? सिट्रिक एसिड साइकिल, दैट इज ग्रेट TCA साइकिल से क्या बन रहा है? यहाँ पे NADH FADH2 बनते हैं. तो NADH का क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा, जिसकी वजह से H आयंस जो है
वो इस कैरियर कॉम्प्लेक्सेस जो है, जिसके अलग अलग नाम है 1 2 3 4, यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम्स बाहर जाएंगे। एंड दिस इज़ द ATP सिंथेस विच इज़ समटाइम कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ये क्या करता है, ये प्रोटॉन फ्लक्स बैक करता है, मीन्स जो आयन जो प्रोटॉन्स होते हैं, इट इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे फिर से अंदर लाने का काम करता है, जहाँ से क्या होगा, ADP दैट इज़ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का कन्वर्शन होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ एन एनर्जी। सो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। And now we'll see the composition of the electron transport chain. There are 4 large protein complexes. Complex 1 is known as the NADH coenzyme Q reductase. Complex 2nd is the succinate coenzyme Q reductase. Complex 3rd is the cytochrome C reductase, and complex 4 is the cytochrome C oxidase. Many of the components are protein with the prosthetic groups to move electrons. And these are the components of ETC, that is NAD and flavoprotein, which are the H, that is proton carriers in cellular respiration. Then non-heme metalloprotein, that is FES protein, which are ion cycles between 3+ and 2+ states. Then ubiquinone or coenzyme Q, that is the region serve as an anchor to inner mitochondrial membrane. And cytochromes, electron transfer proteins that contain a heme as a prosthetic group. So these are the main components of electron transport chain, other than those 4 complexes or 5 complexes. Then the complex first, NADH dehydrogenase. Electrons pass from NADH to FMN, that is flavine mononucleotide, then FES cluster, and then to the ubiquinone, that is the coenzyme Q. तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र NADH से FMN तक जाएगा, फिर फेरस सल्फेट क्लस्टर जो फॉर्म होगा वहाँ तक, और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे ubiquinone, which is having a coenzyme Q. So this is the main function of a complex 1, and that is NADH dehydrogenase. Then complex 2nd is the succinate dehydrogenase. This is the entry point for FADH2. अब NADH का तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होगा कि देयर विल बी एन एंट्री ऑफ FADH2. So succinate dehydrogenase from the citric acid cycle. आपने वहाँ पे देखा होगा सिट्रिक एसिड साइकिल में देयर इज़ एन एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, जो क्या कर रहा था, इट कन्वर्ट्स सक्सिनेट इनटू फ्यूमरेट, और जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है इन TCA साइकिल, तब क्या होता है, देयर इज़ द रिलीज ऑफ FADH2. सो कॉम्प्लेक्स 2nd इज द एंट्री पॉइंट फॉर FADH2. Then acyl-CoA dehydrogenase, it takes from beta oxidation of fatty acids, also transfer electrons to coenzyme Q via FADH2. So this is the main complex of the electron transport chain, in which there is an enzyme succinate dehydrogenase, which directs transfer of electron from succinate to coenzyme Q via FADH2 takes place. Our next complex is complex 3, that is cytochromes P, C1 and C. So electron transfer from ubiquinone to cytochrome C. This is the structure of cytochrome C, which is having a heme as a prosthetic group. And this is the 4th complex. It is the combination of cytochromes A and A3. 10 protein subunits, and it is having 2 types of prosthetic group, that is 2 heme groups are there and 2 copper groups are there. Then electrons are delivered from cytochromes A and A3 to O2. So ये सब क्या है, 4 कॉम्प्लेक्सेस, ये कैरियर है इलेक्ट्रॉन की, जो कि
ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन का जो है वो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. देन सेवरल केमिकल्स कैन इनहिबिट द पाथवे एट डिफरेंट लोकेशंस. सो साइनाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन ब्लॉक ई ट्रांसपोर्ट बिटवीन A3 एंड O2. मीन्स A3 जो इलेक्ट्रॉन O2 को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे साइनाइड होता है जो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हैं जो क्या करते हैं, इसे ब्लॉक करते हैं ट्रांसपोर्ट का. सो कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो थे वो कौन से साइटोक्रोम्स थे, C, B एंड B1. एंड कॉम्प्लेक्स 4 में जो साइटोक्रोम्स है वो कौन से हैं, A एंड A3 विच आर हैविंग अ 10 प्रोटीन सब यूनिट एंड 2 टाइप्स ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. 2 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं और 2 कॉपर ग्रुप्स होते हैं. Now this is the flow of electrons. Here from complex 1 there is a conversion of NADH into NAD. मीन्स यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन्स है वो रिलीज होंगे. फिर कॉम्प्लेक्स सेकेंड में क्या होगा, सक्सिनेट का कन्वर्शन जो फ्यूमरेट में होता है इन TCA साइकिल, वहाँ से FADH2 जो है वो रिलीज होता है. तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, कॉम्प्लेक्स 2 में. उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, यूबिक्विनोन, दैट इज डिनोटेड एज द Q. देन फ्रॉम दिस इट विल गोज टू द कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड इट विल क्रॉस द साइटोक्रोम C और डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ साइटोक्रोम. सो कॉम्प्लेक्स 3 में कौन से थे, C और B साइटोक्रोम्स थे. सो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे आएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ, जहाँ पे कौन से साइटोक्रोम्स है, A एंड A3, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे हमारे O2 तक. सो अब देखो NADH का कन्वर्शन NAD में हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ने काम किया. सो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन्स है वो रिलीज़ हो गए. अब प्रोटॉन्स भी रिलीज़ हो गए लेकिन वो बाहर की तरफ जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस से. लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है उस पर एक फिफ्थ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, दैट इज़ ATP सिंथेज. ये क्या करता है, डायरेक्टली प्रोटॉन्स को जो है वो अंदर आने देता है. मीन्स अब हाइड्रोजन रिलीज तो हो गए बाहर, लेकिन वो अंदर भी फिर से उसका फ्लक्स जो है वो बैक होगा. सो ऐसे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ATP सिंथेज, दैट इज़ द फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, वहाँ से अंदर आएंगे और अंदर आके फिर क्या होगा, दिस हाफ O2 plus those 2 protons will form H2O. Water molecule will be produced here. Now see in this diagram, this is the outer mitochondrial membrane and this is the inner mitochondrial membrane. See इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स कहाँ, आउटर इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में जा रहे हैं. वो इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में अब जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. वहाँ से फिर क्या होगा, वो H मॉलिक्यूल्स ATP सिंथेस, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, वहाँ से अंदर की तरफ आएंगे. अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो H2O भी बनाएंगे और कुछ जो है वो क्या बनाएंगे, ADP से ATP synthesis formation will be there. So this is the fifth complex which is known as the ATP synthase, which helps in the ATP production. So इस तरह से क्या होगा, ATP synthesis होगा अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में, और स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. So this is the functioning of ETC. In ETC, the constituent molecule are arranged in the order of increasing redox potential, then there is a decreasing electron pressure, then diminishing of free energy level. So along the chain there would be a step-by-step flow of electron from most negative initial donor to most positive terminal acceptor, and that is O2. Then electron entering into ETC are energy rich. As the flow down, they lose free energy. Much of this energy get conserved in ATP. So electron का ट्रांसफर होगा, वहाँ से O2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वो मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे, ATP बनाएंगे.
So mitochondria is known as the powerhouse of cell because it produces ATP molecules. एक कंसेप्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ये क्या है? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मूव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH to O2. अब आपको पता है कि NADH और FADH2 से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होंगे और कहाँ पे जाएंगे? O2 के पास. कहाँ से? ATP सिंथेस से. इन द मीन टाइम ADP इज फॉस्फोराइलेटेड टू ATP. अब ADP जो है वो फॉस्फोराइलेट होता है, मीन्स ADP का कन्वर्जन ATP में हुआ और फॉस्फोराइलेट हुआ, मीन्स क्या होगा कि देयर इज एन एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ADP. सो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. So the two processes are dependent on each other. ATP cannot be synthesized unless there is energy from electron transport. मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होते तब तक जो है वो ATP जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका फ्लो नहीं होगा O2 तक जब तक कि देयर इज़ अ नीड फॉर ATP. अगर ATP की जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा. सो दीज आर दी प्रोसेसेस विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो हियर आवर aerobic respiration is over. See you in the next lecture.